Hello everyone, welcome to Diva classes. This is Divya Vadvani and today we'll be solving the ISC 2026 board examination paper of English language. Okay, so that was held today, that is 13th February. So the very first thing that we'll be solving here is a part of functional grammar, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन आपसे कहता है दैट एज सून एज ही वेक्स अप ही रीड्स अ न्यूज़ पेपर. मैंने आपको कई बार बताया था कि वेन एवर यू आर गोइंग टू सॉल्व सच क्वेश्चंस यू नीड टू सी द टेंसेज जस्ट बिकॉज कि इट इज़ इन पास्ट टेंस. नो सूनर डज ही वेक no sooner does he wake up than he reads the newspaper. Okay, then Rajni was writing a long essay. A long essay was it will be was being written by Rajni. I would rather sing than dance. I would prefer singing to dancing. ठीक है, या फिर आई प्रेफर सिंगिंग टू डांसिंग या आई प्रेफर सिंगिंग टू डांसिंग, इट विल बी फाइन. बट प्रेफर के साथ वी ऑलवेज यूज टू, वी डोंट यूज दैन. डू नॉट टैम्पर विद द ब्यूटिफुल आर्ट वर्क. लेट नॉट let the beautiful artwork not be tampered with. Okay, and full stop. Then we watched the movie as well as had dinner at a restaurant. Not only did we watch the movie but also had, as it is we will write, dinner at a restaurant. Okay, restaurant and tea. Then next is a part of phrasal verbs. He gave up most of his money to a charitable institution. तो gave, it will not be gave up, it will be gave away, क्योंकि जब हम कोई फ्री चीज़ डिस्ट्रीब्यूट करते हैं it will be gave away. ठीक, distribution of free gifts. Then the authorities are showing signs of giving in to the workers means to surrender. Then we need to cut up the article. It will be cut down means to curtail the word limit of something, to cut down the article to 500 words. After a few months he realized that he was not cut in for the job. No, he was not cut out for the job. ठीक, means to remove, he was not suitable for it. Then I handed over the application means to pass on to someone for the visa to the officer. The athlete in the relay race handed it will be handed in means to submit, and relay race handed over means to pass on to someone. ठीक, I am surprised you fell by, no, you fell for that simple trick. Our plan to start a new project fell through means कि जब आप किसी चीज़ में फेल हो जाते हो, something that is failed to happen, and fell for means to be deceived by something. Then the coach tried to bring about the best, no, the coach tried to bring out the best in every player means to produce or take out some good thing from the person. Then the teacher brought up an important topic. It will not be on, it will be brought up means to mention a important topic for discussion with the parents. Okay, then moving towards the next part, that is the
क्वेश्चन आंसर ये बहुत इजी होता है, इसमें सब कुछ पास्ट टेंस में था. ठीक. लार्ज नोटिस ऑन द विंडो ऑफ अ शॉप announced ed past tense a big sale with sweeping reductions started at 9 a.m. ing will also do with sweeping reductions starting at 9 a.m. but it's just कि वो past tense में था, तो it started at 9 a.m. An enormous queue had begun. Had के साथ third form of verb will be used to form at 7:30 a.m. Just before the shop was about to open, an inconspicuous little man walked to the beginning of the queue. Angry customers elbowed, means past tense, and pushed him until he was right at the back of the line. Undaunted, the little man went to the start of the queue again. Go ka past tense will be used here. Once more he was shoved. फिर से he was shoved means past tense. Unceremoniously to the back. This time he received a few smacks on the face and a couple of thumbs from umbrellas wielded by those in the queue. The little man walked to one side of the queue, said, "If that is," it will not be was, if that is, क्योंकि ये जो है ये आपका डायरेक्ट सेंटेंस यहाँ पर यूज़ हुआ है. ठीक, डायरेक्ट स्पीच यूज़ हुई है. तो इफ़ दैट इज़ योर एटीट्यूड, आई वोंट ओपन द शॉप एट ऑल टुडे. वी कैन all go home if you continue to behave. It will also be no past tense, it will be present tense like this. Okay, then next part in this is the part of passage जिसमें कुछ अजीब किस्म के मीनिंग्स आए थे. सो आई हैव फाइनली सॉल्व्ड इट, बट आई स्टिल फील लाइक अ लिटिल डाउट इज़ देयर. तो इट विल बी क्लैरिफाइड विद योर ओन डिस्कशंस. आई एम गोइंग टू ओपन दिस अप फॉर डिस्कशन फॉर यू ऑल. तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन जो पूछा गया दैट इज़ एक्सट्रीमली ओल्ड. एक्सट्रीमली ओल्ड जो पैसेज में आई हैव फाउंड इज प्रिमिटिव. दिस इज़ करेक्ट. ठीक. देयर वाज समथिंग कोल्ड एंड डेंजरस about the look in his eyes. ये भी मुझे सही लगा. It will be sinister, something very dangerous. ruthless भी है, vindictive भी है, but वो थोड़ा सा ना cruelty related है. The video was stopped for a while when she went to answer the phone. So this I feel like it will be dazed, means the person is stopping for a while. वो कह सकते हो कि some sort of the person is जैसे कैसे कह सकते हो उसको कि मतलब वो रुक गया है, एक जगह पर रुक गया है या अनकॉन्शियस है. तो दैट मे बी, बट इफ़ एनी अदर आंसर यू आर एबल टू फाइंड, बिकॉज जितने भी मुझे डिफ़िकल्ट वर्ड्स लगे थे ये हाफ कॉन्शियस एंड ऑल इज़ ऑल्सो देयर, बट आई फाउंड दिस विल बी द सूटेबल आंसर हेयर. आई ओपन दिस स्टेटमेंट फॉर डिस्कशन. आप लोग आपस में सॉर्ट आउट इसको कर सकते हो इन केस यू फील लाइक. देन इज़ द नेक्स्ट वन. इसमें बोला गया कि यू शुड टेल द वर्ड दैट इज़ अनचेंज इन स्पेलिंग बट विद अ डिफरेंट मीनिंग. तो वहाँ पर जो यूज़ हुआ है वो यूज़ हुआ है एक ग्लास के लिए. ठीक. तो आई वेयर ग्लासेस, नो अनचेंज इन मीनिंग होना चाहिए. ही ड्रैंक अ बिग ग्लास, ये भी नहीं होगा. देन एक्सॉटिक फ्लावर्स आर ग्रोन इन ग्लास हाउस, ये आई थॉट इट कुड बी, बट द मैटर इज़ कि ये भी ना आपका ये एक फॉर्म में दिया है. दिस इज़ नॉट अ सिंगल वर्ड. हैंस इट विल बी ब्रोकन ग्लास, क्योंकि यहाँ पर ना इसको एक मटीरियल के फॉर्म में यूज़ किया गया है. इट इज़ नॉट अ ग्लास जो यहाँ पर ये वाला ग्लास है जिसमें आप पानी पी सकते हो. आई कट माई सेल्फ इन टू अ पीस ऑफ ब्रोकन ग्लास. ये दिस वुड बी द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट इज़ राइट. वहाँ पर जो यूज़ हुआ है दैट इज़ फॉर द राइट्स, जो हक की बात होती है. तो द राइट टू इन्फॉर्मेशन, नो. मिस MS धोनी इज़ अ फैबुलस राइट हैंडेड, ये हो सकता है, बट यहाँ पर अगेन आई विल नॉट टेक इट क्योंकि ये इसके साथ ही दिया हुआ है. गो अहेड एंड टेक अ राइट टर्न, दिस विल बी द करेक्ट आंसर, क्योंकि यहाँ पर इसकी बात डायरेक्शन के लिए हो रही है और वहाँ पर उसकी बात हक के लिए हो रही थी. एंड आर कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइंस आर राइट, सो ये भी नहीं होगा. देन नेक्स्ट इज टेबल. देयर इज़ अ टेबल ऑफ कंटेंट्स. तो वहाँ पर वो एक जो प्रॉपर टेबल होता है ना लकड़ी का, उसकी बात हो रही थी वहाँ पर. लेकिन यहाँ पर जो टेबल है इट विल बी द फर्स्ट आंसर एज आई फील लाइक. आई लेफ्ट द असाइनमेंट ऑन योर टेबल, नो. दे हैव टेबल्ड, पहले तो फॉर्म ही गलत हो गया है.
द टेबल्स हैव टर्न, तो अगेन इट विल बी नो, क्योंकि यहाँ पर भी स्पेलिंग भी चेंज हो गई है. तो देयर इज़ अ टेबल ऑफ कंटेंट्स, मतलब कि अ लिस्ट ऑफ कंटेंट्स की यहाँ पर बात की गई है. फिर बोला गया है 2 एग्जाम्पल्स फ्रॉम द पैसेज टू शो दैट जडसन वेब वॉज पजेसिव फॉर हिज कबर्ड. तो यहाँ पर उसका कुछ स्टेटमेंट्स यहाँ पर दिए हुए हैं जिसमें से यू कैन टेक आउट द आंसर दैट he seemed fascinated as he saw the harmless drink change into the dangerous dose. He closed his bottle vengeance and set it back on the shelf alongside the little glass. मतलब वो उसके कुछ एक्शन से जिससे पता चल रहा था that he was extremely possessive of his own things. ठीक. Then next is why did Maria think that it was useless to argue with her husband? Because of the nature of him, जो अभी हम आपको यहाँ पर बताते हैं. The statements that I feel like can be used, that he has been very ruthless in business, vindictive when offended by anyone. मतलब बहुत ही ज़्यादा fierce हो जाना, violent हो जाना, क्रूअल हो जाना. तो दिस इज़ वाई शी फेल्ट लाइक कि उससे कुछ भी आर्ग्यू करना यूज़ का नहीं होता है. देन इन योर ओपिनियन इज जडसन वेब जस्टिफाइड इन सेइंग आई मेक माई ओन लॉज? हाँ, ये बिल्कुल जस्टिफाइज है बिकॉज ऑफ द सेम रीज़न दैट ही is very very the kind of person who is very stubborn in his nature. So hence he cannot be moved by, because he himself was not able to listen to Maria. Then you have to summarize the actions that led to Judson Webb falling into his own trap. पैराग्राफ्स 8 to 10 से आपको इसको लिखना था. तो आई होप यू ऑल हैव डन इट वेल. इसमें दिस इज़ नथिंग कि जो आपको एक स्पेसिफिक पैराग्राफ दिया उसी में से आपको समरी निकाल करके लिखनी है इसमें. देन वी विल मूव टूवर्ड्स द पार्ट जिसमें सबसे पहले दिया गया है द क्वेश्चन ऑफ SOP, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, जिसमें आपको एक प्रेस्टिजियस कॉलेज के बारे में लिखना था. एंड इन विच योर पर्सनल क्वालिटीज़, योर अकेडमिक परफॉर्मेंस, आपने कैसा किया है, आपकी क्या अचीवमेंट्स ही एक्स्ट्रा करिकुलर में, द कोर्स ऑफ स्टडी यू विश टू परस्यू, योर फ्यूचर प्लान, रीजन्स फॉर चूजिंग द इंस्टीट्यूशन एंड हाउ यू विश टू कॉन्ट्रीब्यूट टू द इंस्टीट्यूशन. तो इसी का ही एक एग्जाम्पल यहाँ पर आई हैव केप्ट इट कि in case you want to read it out, that as a student, ये as a student completing 12 from XYZ school, I am writing to express my earnest desire to pursue BCA at your prestigious institution. मेरे ambitions ये सारे थे. मतलब I hope कि ऐसा something like that you would have written कि मेरी academic performance means I am always being complimented by deep-seated passion for technology, particularly artificial intelligence. That depends कि आपने ऐसा ही कुछ अपने पास लिखा होगा. ठीक है. देन जो भी करिकुलर एक्टिविटीज़ थी तो उसमें आई हैव एक्टिवली पार्टिसिपेटेड वन सेवरल स्टेट लेवल इंटर स्कूल रोबोटिक्स कॉम्पिटिशन या एनी नंबर ऑफ कॉम्पिटिशन्स. कौन आपसे पूछने आ रहा है कि कौन से मेडल्स यू हैव वन. ठीक. और उसके बाद है कि ये वाला इंस्टीट्यूशन आपने क्यों चूज़ किया है, फॉर इट्स अनपैरेलल्ड रेप्यूटेशन, स्पेसिफिकली फॉर इट्स कटिंग एज AI research labs and renowned faculty in software development. Means you would have also chosen some university, especially the people who are going for CUET. ठीक. तो वो आप एक यूनिवर्सिटी अगर चूज़ कर रहे हो तो क्यों कर रहे हो, दिस इज़ वॉट यू आर सपोज टू राइट हेयर. ओके. और आपके कॉलेज का ये जो है दैट विल नर्चर नॉट ओनली माई टेक्निकल स्किल्स बट ऑल्सो इट विल प्रोवाइड मी क्रिटिकल टू थिंक critically. Then the next question from this was the proposal writing, जिसका जो question है, question, where is the question? हाँ. As a student, president of the student council of your school, you wish to organize the exhibition on the history of India. Write a proposal in not more than 150 words stating the steps you may take. ठीक. तो इसका भी एक सॉल्यूशन आई हैव गिवन हेयर कि प्रपोजल टू ऑर्गेनाइज एन एग्जीबिशन ऑन हिस्ट्री ऑफ इंडिया एज इट इज़. हेडिंग में आई हैव मेंशन टू वन स्पेसिफिक पॉइंट कि मैक्सिमम नहीं मिनिमम 2 होते हैं
नहीं, मैक्सिमम इट शुड बी 2, ठीक है। तो आप उसमें एक भी लिखोगे, इफ इट इज़ 1 ऑल्सो देन इट विल ऑल्सो डू, टू फॉस्टर डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ आर नेशंस रिच हेरिटेज अमंग स्टूडेंट्स। ये मेन टॉपिक था। फिर है इसके ऑब्जेक्टिव्स, इट विल प्रोवाइड स्टूडेंट्स विद अ टैंजिबल इमर्सिव मल्टी सेंसरी लर्निंग एक्सपीरियंस। मीन्स कि पर्सन जो है अगर कुछ एक्सप्लेन कर रहे हैं या आपको कुछ समझाना है तो आप उसको टच कर सकते हो, देख सकते हो कि ताजमहल जो होता है वो ऐसा दिखता है। शिफ्टिंग हिस्ट्री फ्रॉम पैसिव टेक्स्ट बुक्स टू रीडिंग इट विथ एक्टिव एक्सप्लोरेशन। एग्जीबिशन ऑन हिस्ट्री ऑफ इंडिया, मतलब कि आपको कुछ उसके लिए जैसे वो कहते हैं ना कि कुछ मॉडल्स एंड ऑल बनाने हैं। बाय स्टडिंग डाइवर्स आर्टिफैक्ट्स एंड नैरेटिव्स स्टूडेंट्स विल गेन ब्रॉडर पर्सपेक्टिव ऑफ इंडियन हिस्ट्री। ठीक, अब इसमें बताया गया कि लिस्ट ऑफ मेजर्स इसके क्या हैं। इवेंट कब टेक प्लेस करेगा और कहाँ पर करेगा, स्कूल ऑडिटोरियम में। 13 तारीख है तो हमने एक हफ्ते बाद की डेट दे दी है, इस समय से इस समय तक। इट विल कंसिस्ट ऑफ टीम कंप्राइजिंग एंथुजियास्टिक स्टूडेंट्स एंड सुपरवाइजिंग टीचर्स, जो डिफरेंट एस्पेक्ट जैसे कि जो भी सामान है, एग्जिबिट्स हैं, पब्लिसिटी है, वो सब चीज़ों का ध्यान रखेंगे। फिर जो हेड हैं उसके या हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है मिस्टर शर्मा शैल डिवाइड द इंडियन हिस्ट्री इनटू डिस्टिंक्ट एराज एंड असाइन ईच एरा टू स्पेसिफिक क्लास ऑफ और ग्रुप। वो उसके हिसाब से प्रेजेंटेशन करेंगे। स्टूडेंट्स फ्रॉम क्लास 6 to 10 इनको बोला गया है दैट दे आर इनकरेज टू ब्रिंग रेलिवेंट आर्टिफैक्ट्स, मॉडल्स, चार्ट्स, हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स, इन सबको बोला गया है कि आप लोग ले आओ। एंड वी विल ऑल्सो कोऑर्डिनेट विद लोकल म्यूजियम्स फॉर पोटेंशियल टेम्पररी लोन्स ऑफ रेप्लिकाज और इन्फॉर्मेशन मटेरियल्स। ठीक, कि मतलब आप वहाँ से भी हम कुछ रेप्लिकाज या कुछ इन्फॉर्मेशन का मटेरियल तो वो वहाँ से ले आएंगे। वी देयरफॉर होप दैट दिस प्रपोजल विल बी एक्सेप्टेड as this will not only be educational but also a platform for students to showcase their creativity. Okay, this is done. अब आते हैं हम सबसे सुंदर वाले टॉपिक में। तो हमने आपको ऑलरेडी ये सारा जो एक्सप्लेनेशन था इसका हमने कर दिया था। ये सबसे पहले इसमें लिखा हुआ है दैट यू हैव गॉन ऑन अ स्कूल एनुअल ट्रिप, यू वर टेकन ऑन अ जंगल सफारी, यू एक्सप्लोर द beauty and wilderness of nature for the first time in a open jeep, you have to describe the thrilling sights you saw। पूरा जंगल का एरिया इसमें आप इसको बता सकते थे। अगर आपने बोला वीडियो देखा होगा मास्टरिंग ऐसे राइटिंग का, तो उसमें डिस्क्रिप्शन में मैंने बहुत सारी साइट्स दी थी आपको कि जंगल एरिया या कोई भी एरिया है आप उसको कैसे डिस्क्राइब करोगे, साउंड्स कैसे थे, स्मेल कैसी थी जंगल की, एंड that caught your attention, what was your entire experience that changed your perspective about nature। ठीक, you and your classmates। so I hope ये जितनी भी चीज़ें ये आपने सेपरेट पैराग्राफ्स में इसको एक्सप्लेन किया होगा। then you and your classmates were selected to represent your school in an inter-school sports competition। However, both of you had stopped talking to each other due to misunderstanding। Narrate what had caused the misunderstanding and your initial reaction on being the part of the same team। तो आपको ये सारा जितना भी नैरेटिव्स थे ये आपको लाइन बाय लाइन एक लॉजिकल ऑर्डर में दीज थिंग्स यू वर सपोज टू एक्सप्लेन। ठीक, कि आपको इलेबोरेट करने कि आपने क्या क्या एफर्ट्स लिए चीज़ों को रिजॉल्व करने के लिए, जो डिफरेंस था, जो भी आपके बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी वो, एंड हेंस यू रिन्यूड योर फ्रेंडशिप। तो वो सारी चीज़ें आपको इसमें मेंशन करनी। देन टूरिज्म रिजल्ट्स इन लॉस ऑफ लोकल कल्चर एंड ट्रेडिशन, मतलब कि जब आप बाहर जा रहे होते हो तो यू डोंट थिंक ऑफ योर ओन लोकल कल्चर एंड ट्रेडिशन। अगर आप इसके फॉर्म में बता रहे हो तो और अगेंस्ट में बता रहे हो तो भी मीन्स यू टूरिज्म रिजल्ट्स इन लॉस ऑफ लोकल कल्चर एंड ट्रेडिशन, कि पीपल व्हेन दे गो आउट दे अडेप्ट द आउटर cultures more as compared to their own local ones। तो इसके either for or against you have to tell। then magic, multiple things you can write on it, कि जैसे some magic happens in the kind of angel in disguise when someone comes as an angel to you। magic, जादू टोना भी इसमें लिख सकते हो, कोई स्टोरी इसमें मेंशन कर सकते हो। then happiness is a state of mind, is a very wider perspective जो आप इस पे लिख सकते थे। and then next is a story that begins, it was a familiar voice, this could only mean that। तो ये beginning यहाँ से होनी थी, उसके बाद आपको उसके the plot, characters, logical ending, climax, dialogues, ये सारी चीज़ें इसमें mention करनी थी। so I hope what
you have done in your paper was good enough for you to bring excellent marks. Okay, now अब जो खत्म हुआ सो हुआ, गुड बैड आई नॉट आस्क यू कि पेपर कैसा हुआ, बिकॉज ऑब्वियसली टू डिस्क्राइब इट एज ए स्टूडेंट इज़ नॉट दैट ईजी, मैं नहीं पूछूंगी. बट येस, if you have done well you can tell me, and just after this just keep preparing for your literature paper. आराम से just take a little bit of chill, and then if you are able to do, रात में उसको पढ़ाई करना, otherwise morning में. Okay, till then keep preparing. Best wishes. Thank you.